under a tight knot. The desires for lording it over the material world under the intoxication of a false sense of lordship specifically begins just after the man's unification with the woman. The desire for acquiring a house, possessing land, having children, and becoming prominent in society, the affection for community and the place of birth, and the hankering for wealth, which are all like phantasmagoria or illusory dream, encumber a human being, and he is thus impeded in his progress towards self-realization, the real aim of life. The brahmachari or a boy from the age of 5 years, especially from the higher caste, namely from the scholarly parents, the brahmins, the administrative parents, the kshatriyas, or the mercantile or productive parents, the vaishyas, is trained until 25 years of age under the care of a bona fide guru or teacher and under strict observance of discipline. He comes to understand the values of life along with taking specific training for a livelihood. The brahmachari is then allowed to go home and enter householder life and get married to a suitable woman. But there are many brahmacharis who do not go home to become householders but continue the life of Naishtika brahmacharis without any connection with women. They accept the order of sannyasa or the renounced order of life, knowing well that combination with women is an unnecessary burden that checks self-realization. Since sex desire is very strong at a certain stage of life, the guru may allow the brahmachari to marry. This license is given to a brahmachari who is unable to continue the way of Naishtika brahmacharya, and such discrimination are possible for the bona fide guru. A program of so-called family planning is needed. The householder who associates with women under scriptural restrictions after a thorough training of brahmacharya cannot be a householder like cats and dogs. Such a householder after 50 years of age would retire from the association of women, is a vanaprashta, to be trained to live alone without the association of women. When the practice is complete, the same retired householder becomes a sannyasi, strictly separate from women, even from his married wife. Studying the whole scheme of dissociation from women, it appears that a woman is a stumbling block for self-realization, and the Lord appeared as Narayan to teach the principle of womanly dissociation with a vow in life. The demigods, being envious of the austere life of the rigid brahmacharis, would try to cause them to break their vows in dispatching soldiers of Cupids. But in the case of the Lord Narayan, it became an unsuccessful attempt when the celestial beauties saw that the Lord can produce innumerable such beauties by his mystic internal potency, and that there was subsequently no need to be attracted by others externally. There is a common proverb that a confectioner is a person who makes sweets, mithai wala. A confectioner is never attracted by sweets. Very good, sweets. The confectioner who is always manufacturing sweet has very little desire to eat them. Similarly, the Lord, by his pleasure potential powers, can produce innumerable spiritual beauties and not be the least attracted by the false beauties of the material creation. One who does not know alleges foolishly that the Lord Krishna enjoyed women in his Ras Leela in Vrindavan, or with his 16,000 married wives at Dwaraka. Om Jnana Timirandhasya Jnananjala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale
स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाम कृष्ण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय Hare Krishna. So very long purport. If we study the whole purport very nicely, it will take at least 1 month and we still can't cover it. So what we will do is we will just go through the essence of this whole, किस context में शुरू होता है. So this context is from Canto 2. Just a quick summary. तो जो Canto 2 में first 3 chapters में बताते हैं कि गृहमेदी कौन है. These two things, गृहस्थ और गृहमेदी का डिफरेंस है. गृहस्थ से जो हस्बैंड वाइफ अच्छा से भगवान की भक्ति करे साथ साथ में, एंड दे यूज देयर कंबाइंड एफर्ट्स एंड दे डू वेरी नाइस सर्विस टू द लॉर्ड. और गृहस्थ के सेंटर में कौन है? श्री कृष्ण. और गृहमेदी जो है उनका सेंसस है उनका सेंटर. दे वांट टू एंजॉय ईच अदर. तो इंजॉयमेंट जब खलास होता तो मैरिज लाइफ फिनिशेस. और गृहस्था में नथिंग लाइक दैट बिकॉज द सेंटर इज कृष्णा. सो द हस्बैंड एंड वाइफ सी ईच अदर एज सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा. They see the children as servants. They see Bhakti Vinod Thakur says, "My home becomes Vrindavan, Goloka." तो इस तरह से बताते हैं. शुरुआत में बताते हैं criticizes the गृहमेदी. गृहमेदी बस जब तक बॉडीली अट्रैक्शन है, सुंदर लगे है, काम चले है, टिल यू आर सम यूज टू मी, दिस मैरिज इज गुड. दैट्स द कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर शुरू में बताते हैं. फिर बताते हैं विराट रूप के बारे में और परमात्मा रूप के बारे में बताते हैं. फर्स्ट 3 चैप्टर्स में बताते हैं. नाउ इफ यू हैवंट हर्ड श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 4, you're doing a great injustice to yourself, because Canto 4 में सब questions, there is so many nice questions, और ये questions is the basis of the future Srimad Bhagavatam. Initial questions है, but these questions go into deep, so we will deep dive into those questions. तो those are question 2.4 में सब questions पूछिस रहा. और नारद मुनि 2.5 में he begins with Sarg. Sarg Visarga. Sarg is the creation. Creation topic किसी को अच्छा नहीं लगता है. It's like something like physics. Like हम स्कूल में फिजिक्स करते थे या तो कैलकुलस करते थे तो पसंद नहीं है. But it's very important to समझे कि जब सर्व कारणम कौन है, then we will be able to understand and we'll be able to explain why Krishna is the supreme personality of Godhead. तो फिर बताते हैं 2.5 to 2.7 में बताते हैं नारद ब्रह्मा संवाद. जब क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षित महाराज किसे? सुखदेव गोस्वामी से, तो रेफरेंस करते हैं. रेफरेंस इज द नारद ब्रह्मा संवाद. तो बताते हैं इस रेफरेंस. तो अभी जो चीज हम लोग पढ़ता है इट इज फ्रॉम दैट रेफरेंस. तो ब्रह्मा जी इज नाउ एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली अबाउट एवरीथिंग. तो कारण सृष्टि के बारे में बात करें, कारण रक्षाए विष्णु के बारे में बात करें जो महाविष्णु है, कार्य शक्ति के बारे में बात करें, विराट रूप के बारे में बात करें है. और अब जो बात करें है भगवान के लीला अवतार के बारे में बात करें हैं. और लीला अवतार के विषय में बात करने से पहले बताते हैं प्रीवियस चैप्टर में लास्ट श्लोक में अगर आप के याद है तो बताते हैं आई विल डिस्क्राइब द लीला अवतार विच इज कंपोज्ड ऑफ चित शक्ति. जस्ट मेड अ स्मॉल नोट विच इज वेरी रेलेवेंट. दिस इज वेरी नेक्टर. तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये जब हम सुनेंगे भगवान की लीला अवतार के बारे में तो ब्रह्मा जी बताते हैं जितना फाउल माने
गंदगी, डर्टी, मैला चीज जो हम लोग के कान में और हार्ट में एक्यूमुलेटेड है, वो सब नष्ट हो जाएगा। हाउ? बाय हियरिंग अबाउट दिस लीला अवतार। Brahma ji is giving us a chance in this Damodar month to clean out all the foul. क्लीनिंग हम लोग दिवाली के करते हैं, घर की क्लीनिंग करते हैं, so when it's cleaning, but this is a very good opportunity to clean our heart and mind. और कितना जन्म जन्म से ये सब कचरा पड़ा है। क्लीनिंग से हम लोग तो कोई पैसा देके घर सकता सफा कर दे, और इसकी कौन सी करेगा? इसके लिए ब्रह्मा जी हम लोग के बताया है that these pastimes are very pleasing to hear. हृत करना रसायन सतम प्रसंग मम वीर्य संविदो। Another chapter 3.25.25 बताते हैं कपिल देव माँ देवभूति से हृत करना रसायन इन द असेंबली ऑफ डिवोटीज। यही रकम असेंबली ऑफ डिवोटीज में बताते हैं कि हृत करना रसायन, ये जो कथा it becomes pleasing to the ears and to the heart. And Srila Prabhupada explains a very interesting thing in the purport of that text, that we all have a tendency to hear pleasing messages. अभी हम लोग क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग। क्या अच्छा है फर्स्ट पोस्ट से या कोई अच्छा फिजिटाइम से स्क्रॉल करते हैं। We want, जिसमें हमारा मन प्लीज होता है उसमें हम लोग अटक जाते हैं। ये तो डिस्प्लीज्ड होता है उसमें भी अटक जाते हैं। राग द्वेष, अटैचमेंट एंड अवर्शन, माने कि जिसे हम लोग हेट करते हैं, जिसका लाइक करते हैं, वी गेट स्टक इन दैट। तो यहाँ बताते वी ऑल हैव अ टेंडेंसी टू हियर प्लीजिंग मैसेजेस लाइक टॉक्स, पॉडकास्ट एक्सेट्रा, बट नो वन इज सेटिस्फाइड एट हार्ट। Prabhupada बताते because of the incompatibility of the messages with the innermost stratum of the soul. कितना भारी बात श्रील प्रभुपाद जी बताते। This whatever we are finding it very pleasing, it's not very compatible. हमारे जैसे अगर आपके पास चाचा है, ये फोन के चाचा है, और आप पुरान फोन के चार्जा लगाना चाहते हैं, बैटरी 2% है, आप कौन चार्जा तो ढेर है, लेकिन जो वाया है आपको स्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी नहीं लगाएंगे तो फोन मर जाएगा। चाहे $4,000 के फोन है, चाहे $50 के फोन है, नहीं चलेगी जब तक इसमें कंपैटिबिलिटी नहीं होगा, जितना भी कोशिश करेंगे। और हम लोग भी कितना अच्छा मैसेजेस सुनता है, कितना अच्छा, बट जब तक वो आत्मा के साथ कंपैटिबिलिटी माने कि एक रकम से उसके साथ मिलेगा नहीं, तब कोई फायदा नहीं है। सो विद दिस वी स्टार्ट टुडेस कथा, एंड टुडे वी विल स्पेसिफिकली, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड वी विल स्पेसिफिकली स्पीक ऑन नर नारायण ऋषि, बिकॉज दैट्स उनके बारे में बताते हैं। व्हेन वी हियर इट इज वेरी प्लीजिंग टू द हार्ट। और जितना फाउल चीज होता था लास्ट लाइफ का, जितना भी इम्प्रेशन माने हैं, अगर आपके पास जैसे कि आटा बनाया है, अंगूठा से कुछ ऐसे बनाया तो इम्प्रेशन मार्क हो जाता है। इसी तरह से हम लोग के कॉन्शियसनेस में इतना भारी इम्प्रेशन हो गया है टाइम मेमोरियल से, और उसके निकाले के लिए एक ही का रास्ता है, भगवान के नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करना, और भगवान के कथा, भगवान के नाम रूप गुण लीला, स्पेशली इस दामोदर महीना में और सफाई में। सो वी विल हियर अबाउट द ग्लोरीज ऑफ नर नारायण। सो ये कथा अगर हम लोग डीप में जाना चाहते हैं, देन वी हैव टू गो टू कैंटो 11। तो एक समय ये नर नारायण ऋषि यहाँ पर कथा में बताते हैं कि ही इज द सन ऑफ धर्मा एंड मूर्ति। तो धर्मा और मूर्ति के पुत्र है नर नारायण, एंड एक्चुअली इट्स कृष्ण बुक में बताते दिस नर नारायण इज कृष्णा एंड अर्जुन। वेरी गुड। तो एक समय इंद्र एकदम डर गए, बिकॉज नर नारायण छोटे से क्या करते थे, दे वर डूइंग
ऑस्टेरिटी, तपस्या इन भद्रिकाश्रम। तो इंद्र जी जब जब कोई तपस्या करे, ही गेट्स वेरी वरीड। जैसे एक समय विश्वामित्र वाज डूइंग द तपस्या, देन हु डिड ही सेंड? मेनका। फिनिश्ड हो गया फिर उसके सब तपस्या। तो ही वांटेड टू डू द सेम फॉर नर नारायण, एंड हु डिड ही सेंड? ही सेंड एन आर्मी ऑफ क्यूपिड्स। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ही सेंड एन आर्मी ऑफ क्यूपिड्स। सबके लिए कभी एक भी चल जाता है, बट नर नारायण के लिए इतना ढेर अप्सरा क्यूपिड्स भेजे। एंड देन नर नारायण ऋषि सोचे, इंद्र ने सोचा कि हम कौन सी करिए, आई हैव टू डू दिस। भद्रिकाश्रम में तो यहाँ पर बताते हैं, क्यूपिड हिमसेल्फ he attacked the Lord with arrows in the form of irresistible glances of beautiful women। तो इस तरह से ना, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि विमन जो है ना, दे कैन ईजली टेक द माइंड ऑफ एवरीबॉडी। तो यहाँ पर सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह से कहा कि आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस साधु व्रत, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय हिज ऑस्टेरिटी। तो इतना भारी सुंदर सुंदर लड़की बन के भेजी। एंड व्हाट डज प्रभुपाद से इन द पर्पट, कि एक मिठाई वाला जो दिन भर मिठाई बनाता है, होल डे इज मेकिंग जलेबी, विल ही वांट टू ईट एनी? नो, इज टायर्ड, खाली देखने से थक जाता है। सो प्रभुपाद यूजेस दिस एग्जांपल। तो नर नारायण यहाँ पर बताते हैं, ही इज अ स्केड्यूल्ड इनकार्नेशन। He is not an ordinary person, he is not an ordinary tapasvi, he is Lord himself। तो यहाँ पर just to go a bit deeper into this shloka, तो बताते हैं that so many beautiful क्यूपिड्स मन लेके आए, सुंदर सुंदर लड़की लन इसके तपस्या भंग कर, लेकिन भगवान में से सुंदर सुंदर लड़की लन प्रकट हुए लगा रहा, विच वॉज स्पिरिचुअल ब्यूटीज, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। अब सबको एकदम शॉक्ड हो गए। अब क्यूपिड आई से इस संत मुनि के ध्यान टूरे, उसकी थिंग्स इज अ संत मुनि, और उसके बॉडी में से, और बोले उर्वशी वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द थाई ऑफ नर नारायण। उर्वशी ना सुंदर सुंदर अप्सरा। अब आप जाकर जिसके डिस्ट्रॉय करे उसमें से और निकले लगे। अब कामदेव जो है वो डर गए, बिकॉज एक दफा कौन सी दूसरा शिव जी उसके भस्म करते, तो वरी करे लगा, और सबको एकदम स्टन्ड हुए। अपन आप के एकदम देखे जैसे कंपेयर टू, बोले जैसे फ्रॉक्स, the ordinary ladies of this world nowhere compared to the spiritual beauties। अब सब एकदम डर गए, अब सब एकदम रेडी हो गए। अब तो हम लोग के श्राप मिली या हम लोग के भस्म कर दी, कौन सी कर दी। और ये तो जना साक्षात नारायण है, इतना भारी तेज है उसमें से। लेकिन भगवान देख लीजिए उनके हृदय में क्या हो रहा है, उनका पश्चाताप। हृदय में अगर आप रिपेंट करेंगे तो भगवान जान जाते, क्योंकि भगवान कहाँ बैठे से? परमात्मा इज सिटिंग अप हियर, एंड ही स्टार्टेड स्माइलिंग एट देम। डोंट वरी, हम आपके कुछ नहीं करेगा। इन रिटर्न यू कैन टेक वन ऑफ दिस ब्यूटीफुल गर्ल्स बैक टू इंद्र एज अ गिफ्ट। तो ये है भगवान के नेचर। वो जानते हैं कि कौन भक्त उसके, व्हाट हिज डिवोटीज लाइक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अगर आप पवित्र भक्ति चाहेंगे तो कृष्णा विल ओनली गिव यू मोर एंड मोर सेवा। आप फिर बोलना नहीं कि इतना ढेर सेवा मिले, बिकॉज कृष्णा विल ओनली गिव यू व्हाट यू वांट। सो नाउ इंद्र वांट्स ब्यूटीफुल गर्ल्स, कृष्णा विल टेक उर्वशी एंड बी सेटिस्फाइड, because at the end of the day Krishna wants his devotees to be satisfied. So this was on Nar Narayan, and now we will just touch a bit of sannyas. Sannyas is actually prohibited in Kali Yuga. बताते हैं lots of places not supposed to take sannyas. It's very difficult. The sannyas ले लेगा, especially when you take it very prematurely, the chance is that you might get attracted and you might fall down again. But जब Srila Prabhupada ji went
to USA, he took that risk. 19-year, 20-year-old, किसके देश? Western boys and girls. They had no idea who Krishna was, who Ram was, but because Prabhupada ji के पास इतना ढेर potency रहा, and he was giving the pure message of Krishna, they wanted to give his life. And then slowly, काहे preaching के लिए? Because sannyas means you have no other connections. Just full-time preaching. Srila Prabhupada ji, in this context, he also explains that this is the first marriage in Krishna consciousness. Everybody, 99% of the people in this room are grihasthas, so we'll speak about marriage, the successful marriage. तो जब Srila Prabhupada ji went to USA, तो वहाँ कोई वैदिक धर्म के बारे में नहीं चलता रहा. They were practically hippies, living with each other, just like normal living relationship में. तो there was one Mukunda and Janaki. तो ये दोनों first devotees थे, Srila Prabhupada जी के first disciples थे. तो they were very impressed by Srila Prabhupada जी. Prabhupada जी जो चीज बताते थे, they were ready to do. They found Prabhupada very pure, very attractive, and he practiced what he preached. Not armchair philosopher, जैसे कि कोई कुछ और बोले है और कुछ और करे है. तो प्रभुपाद जी के बात सुनते, जैसे प्रभुपाद जी बोले ओके वी विल हैव इनिशिएशन, बस बैठ के इनिशिएशन लेके बैठ जाते हैं और मिल जाता है. फिर मुकुंद महाराज और जानकी, फिर बाद में मुकुंद दास महाराज बन जाते हैं. तो फिर जब इनिशिएशन लेते हैं तो प्रभुपाद जी फिर अपन रूम में बोला, so you have taken initiation and you have now vowed to follow the 4 regulative principles, which is no illicit sex, and now you are living together. बस इतना खाली बताइए और कुछ नहीं बताइए. नेक्स्ट डे ये दोनों आकर कहा प्रभुपाद जी वी वांट टू गेट मैरिड. तो प्रभुपाद जी बोले एज अ सन्यासी आई एम नॉट सपोज टू डू वेडिंग्स. सन्यासी को नहीं, ये सन्यासी का बिजनेस नहीं है किसी का शादी कराने के लिए. बट बोले व्हाट टू डू. प्रभुपाद जी अकेले, कोई के बुलाए, कोई ब्रह्मचारी के बुलाए तो उसके कितना 6 months लगेगा कार्गो शिप में आने के लिए, कितना समय लगेगा. तो कहा कि ओके आई विल मैरी यू बोथ. तो उन्होंने कहा कितना इनोसेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ये वाला जो स्टोरी है ये मुकुंद गोस्वामी लिखते हैं शूटिंग द राइनो. राइनोसरस आप जानते हो बहुत भारी जानवर होता है. तो कभी कभी कोई बोले आई एम गोइंग टू शूट द राइनोसरस, तो सब बोले वाओ, अगर उसके शूट कर दिया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी शूट करा तो बहुत अच्छा है. आई मीन स्टिल ट्राई टू शूट द राइनोसरस. तो ये बुक है शूटिंग द राइनो, मुकुंद गोस्वामी लिखते हैं कि जब प्रभुपाद जी कहा यू गेट मैरिड, तो कहा व्हाट शुड वी वेयर, शुड वी वेयर व्हाइट, व्हाट शुड द ब्राइड वेयर, बिकॉज क्रिश्चियंस में तो व्हाइट पहनते हैं. तो प्रभुपाद जी ने कहा ब्राइड शुड वेयर रेड एंड ब्राइडग्रूम शुड वेयर व्हाइट. तो कहा ओके ठीक है. तो कोई जगह से फिर उनको साड़ी मिला है, फिर थोड़ा ज्वेलरी मिला है, तो फिर जानकी फिर अच्छा से ड्रेसअप हुई. फर्स्ट टाइम फिर सबको देखे इतना सुंदर प्रिटी लगे, कोई जनता नहीं रहा बिकॉज इतना ढेर ज्वेलरी रहे, मेकअप रहे, वैसे सिंपल रहा जानकी. शी वाज सो ब्यूटीफुल. और प्रभुपाद जी उसे कहा गेट योर फैमिली, ऐसे नहीं शादी करो, शादी मांगो 2 फैमिलीज के साथ रहो. और एक के तो फैमिली रहा नहीं और दूसरा के फैमिली जानकी की बहनी जोन आइस ओरेगन से 2000 miles. And this Joan later on becomes Jamuna. So she came and then Prabhupada ji देखे उसको और कहा how many of you have come? Only one. लड़की की तरफ से खाली एक के आए, सब वेस्टर्न है सब. और बताते रहो जाने नहीं कि वैदिक शादी कौन सी है. सबको तो क्रिश्चियन शादी जाने, बस चर्च में जाए के बाउस एक्सचेंज करते. तो प्रभुपाद जी ऐसा सन्यासी ही है टू डू एवरीथिंग, टीच एवरीथिंग. फिर जॉन को कहते अच्छा कम हियर, विल मेक सम कचोरी. अच्छा बोले ओके, बोले ओके मेक अ मीडियम डो. मीडियम डो माने बहुत कड़ा नहीं बहुत नरम नहीं.
तब अब जोन पूछती है विल इट बी सॉफ्ट पेस्ट्री और हार्ड पेस्ट्री? भले हाउ ओल्ड आर यू? प्रभुपाद जी उसे बोलते आई एम 25. 25? Women, small girls in India, they know how to make rotis when they are 5 years of age. तो प्रभुपाद जैसे हो जाती उसके फिर डांट लगता है। तो इस तरह से वो बहुत मेहनत करती है और फिर पसीना आ जाता है तो पूछती है तो प्रभुपाद जी बोलते जाओ हाथ धो के आओ। गर्ल्स हाथ धो के आओ। पानी पीना चाहते उसको लगभग 4 घंटा लगा वो सब फीलिंग बनाते के लिए। और फिर उसमें फिर क्या उसने पानी जाते पीते गो वॉश योर हैंड्स, उसको बताती है कि ये भगवान के लिए भोग बनता है। वो बेचारी जानती नहीं है भोग क्या है, लेकिन वो इतना जानती है कि मुझे हेल्प करना है, मेरा ये ड्यूटी है। अमेरिकन कल्चर में एक चीज़ है वो समझ जाते उसको कुछ करना है, आई हैव टू डू इट। आई एम द ब्राइड ग्रूम्स फैमिली और हमें कुछ भी कर आई हैव टू हेल्प। और शी वॉज सो फॉर्चुनेट दैट शी वॉज हेल्पिंग प्रभुपाद जी। फिर नाउ शी वांट्स टू स्मोक, बोले मुझे सिगरेट पीना है। प्रभुपाद जी धीरे उसको देखा, ओके गो आउट, स्मोक, वॉश योर हैंड्स, कम बैक। अब क्या करना, वही एक हेल्प है। तो फिर वो आती है, बस शी जस्ट केम फॉर ओरोगन। तो उसने तो सोचा शायद वेडिंग है, हम जाएंगे सलून में बाल डाई करेंगे और यू नो विल डू सम मेकअप नेल्स। यहाँ पर दिन भर कचौड़ी बनाया एंड देन आफ्टर दैट शी वाज आफ्टर सम एसोसिएशन शी इज वन ऑफ द जो प्रभुपाद जी का जो कीर्तन नहीं यमुना जी, very nice katha about her, but we don't have time to say that. And then very nicely they had this wedding. So what happened was this Mukunda and Janaki, they wanted to go to India. They actually had arranged to go to India because they heard so much about India. और फिर उन्होंने प्रभुपाद जी से परमिशन लेते हैं और कहा कि प्रभुपाद जी हम लोग को इंडिया जाना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ओह ओके गुड। जैसे वो डोआ में से जा रहे थे तो प्रभुपाद जी उनको बुलाया, कहा बेटा यू गो टू वेस्ट कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर तुम एक टेम्पल स्टार्ट करो। तो कहा ओके मे बी व्हेन वी कम बैक। तब बोले हम लोग लौट के आए जाएगा इंडिया से, देन वी विल डू दैट। बट हु डिड दे मीट? दे मेट श्याम सुंदर एंड मालती हु हैड जस्ट जॉइंड। तब जैसे उनको पता चला कि इनको प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया, उसने कहा लेट्स गो वी विल हेल्प यू। तो आप देखिए देन दे कैंसल द इंडिया ट्रिप एंड दे वेंट टू सैन फ्रांसिस्को टू स्टार्ट द फर्स्ट बिग मेजर टेम्पल इन USA. This is the potency and power of renunciation कि अपन कुछ के सब कुछ के त्याग कर बलिदान करके जस्ट टू प्लीज गुरु एंड कृष्णा। तो यू नो पुश करते थे, दे डिड एवरीथिंग, दे डिड यू नो। इनको तो इंस्ट्रक्शन भी नहीं मिला, प्रभुपाद जी ने इनसे कुछ कहा भी नहीं, बट इट वाज सो पोटेंट कि गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें गुरु क्या डालते हैं? अपना कृपा और शक्ति। जैसे कि दामोदर जी का जो भालने के लिए क्या चाहते हैं? तो मेहनत तो चाहिए, वी नीड अ एफर्ट, भगवान का कृपा चाहते हैं। तो इस तरह से so much beautiful pastimes की जो initial Western devotees, they were so austere. One last pastime we want to explain is Malati Mataji, who is also a GBC. तो Malati Mataji during 1976 she was full time in मायापुर में सेवा करती थी और उसका सेवा क्या था? कुकिंग, प्रभुपाद जी का लिए कुक करती थी। और मालती माता जी she had to travel by boat to नवद्वीप। उस समय अभी तो अब जाएंगे तो वेजिटेबल्स थोड़ा आ जाता है, लेकिन अगर आप जाएंगे मायापुर तो एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड उस समय 1976 you have to go by boat। तो सोचो वेस्टर्न वुमन ट्रेवलिंग अलोन टू गो टू द अदर साइड गेटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स, और वहाँ वेस्टर्न वुमन को देखकर भिंडी के प्राइस तो लाइक 10 टाइम्स बेसी हो जाएगा। तो लाइक शी हैड टू गो एंड निगोशिएट। तो फिर सब अच्छा वेजिटेबल्स लेके आओ, फिर
कुकिंग करके प्रभुपाद जी को दे. So and every day she gives the vegetables, she cooks nicely. Prabhupada ji बोले इसमें नमक बहुत ज़्यादा है, too much salt. ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छे से फ्राई नहीं करे. Every day Prabhupada ji never said anything good. Every day उसको डांट लगता था, very bad, this is very not salty. कुछ में नमक कम, कुछ में मिर्चा ज़्यादा है, कुछ में मिर्चा. अब तो बोले कहा. तो उसने सोचा मैं अच्छा से सेवा नहीं करती, इतना महीना हो गया, आई एम नॉट सर्विंग, आई एम नॉट प्लीजिंग माई गुरु. टुडे इज द लास्ट डे आई विल सर्व श्रीला प्रभुपाद जी. मन में एकदम ठान लिया, आई विल आफ्टर आई सर्व प्रभुपाद, तब हम फिर वापस नहीं सर्व करेंगे. बस प्लीज नहीं कर पाता, रोज कुछ ना कुछ. कभी प्रभुपाद जी ने कहा वेरी गुड, एवरी डे कुछ ना कुछ कंप्लेन. तो उसने प्रभुपाद जी ने उसे सुबह बुलाया और कहा टुडे माय गॉड ब्रदर्स आर कमिंग. मायापुर से जो है ना, श्रीधाम से ढेर गुरु भाई आते हैं. टुडे माय गॉड ब्रदर्स आर कमिंग, सो यू कुक नाइसली एंड यू कुक अ लॉट. तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया ढेर पकाना. ओके, तो उसने पकाया, अच्छा से पकाया और उसके सब गॉड ब्रदर्स आए. और ऐसे है कि उस समय मायापुर में इतना टेम्पल कंस्ट्रक्शन होते थे कि Malati was happened to be the only one serving Srila Prabhupada that day. तो उसके गॉड ब्रदर्स तो सब समय तो मिस्टेक्स खोजते रहे. तो जैसे वो मालती माता जी को देखा, उसने सिर पर दुपट्टा ऐसे ढाका था और उसने जब आया था, and then she started serving very nicely, and then they said, oh, a woman is serving. Prabhupada ji बोले yes, she is serving and she is ready to cut her throat for me. और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जब सुनेगा तो रोहा खड़ा हो जाए. प्रभुपाद बताए एंड आई एम रेडी टू कट माई थ्रोट फॉर हर. दिस इज अब मालती जब सुनी उसके तो बस हाथ शेकने लगा. शी वाज लाइक, देन शी जस्ट पेड हर ओबेइसेंसेस. अब बोले मर जाएगा लेकिन प्रभुपाद जी का सेवा नहीं छोड़ेगा. So this is the relationship. Then Prabhupada ji, he never saw female disciple or male. Of course, Prabhupada ji always was very careful about that. But he always saw the soul inside. So this is what we have to do. This tapasya, this austerity, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए that it makes our heart become hard. कभी-कभी तपस्या करने से हम कठोर हो जाते हैं. We become so hard. Tapasya is meant to make us humble, you know. So we see how the Western devotees, how Tamal Krishna Goswami Srila Gurudev, he used to sleep on the steel. Just जैसे मंदिर बनता था मायापुर मंदिर, sleep on the steel कि कोई चोरी नहीं करे. So everybody does austerity, tapasya. So इस महीना में we can meditate on Nar Narayan. They did so much tapasya. Being the supreme personality of Godhead, they did so much tapasya and they give so much instructions to Narad Muni. 4 धाम, अगर आप इसे जानेंगे तो 4 धाम है. तो ज़्यादा करके people लोग travel करे हैं and they travel to these places. They go to जगन्नाथपुरी. तो जगन्नाथपुरी है वेस्ट में, रामेश्वर होते हैं साउथ में, और द्वारकाधीश होते हैं ईस्ट में, और बद्रीनाथ होते हैं जो राइट ऑन टॉप ऑफ द नॉर्थ में होते हैं. तो यहाँ पर बद्रीनाथ, बद्री आश्रम, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नर नारायण के आश्रम है वहाँ पर, और जहाँ पर उसने फिर नारद मुनि को इंस्ट्रक्शंस दिया. तो कभी आप कभी सेहत अच्छा नहीं, then you do this 4 धाम tour. Otherwise for devotees, even just we go to Mayapur and Vrindavan, we get all the 4 dhams there. So this was just a bit on Nar Narayan and how he was manifesting. जब हम ये सुना, you know, it's just like Krishna in the Brahma Vimohan Leela, he was also manifesting. जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सब ग्वाल बाल और सब मित्र को चुरा लेते हैं, तो कृष्ण भी अपने आप को मैनिफेस्ट करते. as many cowboys they were, as many cows they were, and beautiful and exact mood, exact duplicate कि उनके माँ भी नहीं जान पाए. at least for
1 year nobody knew कि ये हमारा बच्चा नहीं है, कोई और है। कोई कितना भी ट्राई करे किसी को कार्बन कॉपी करना, लेकिन एक नहीं। तो इस तरह से कंक्लूजन हम में आ चुके हैं। तो कंक्लूजन में कि दिस मंथ इज अ वेरी इम्पोर्टेंट मंथ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से कि हमको इस स्पेशली ये वर्स में बताते हैं कि ये जगह जहाँ भद्रिक आश्रम है, यहाँ पर भक्ति किस तरह से होता है। तो हम अपने हृदय को भद्रिक आश्रम बना सकते। वी डोंट हैव टू गो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स थ्रू द हिमालयस। हमको ये तपस्या करना, और इतना सिंपल तपस्या। हाउ वी डू ऑस्टेरिटीज एंड तपस्या एज इट इज ऑथराइज्ड। जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया, ऐसे करो, दामोदर महीना में कितना करो, दिया बढ़ाओ, डू एटलीस्ट वन स्पेशल थिंग फॉर द लॉर्ड, मे बी एक्स्ट्रा चेंजिंग करो, या एवरी डे कम फॉर मंगल आरती। देन यू कैन डू दिस इन कार्तिक ऊर्जा व्रत में। एंड देन हाउ वी कैन इंक्रीज आवर जपा एंड हियरिंग, क्योंकि हियरिंग से क्या होता है, ऑल द फाउल थिंग्स विल बी क्लेंस्ड। जितना फाउल थिंग, जितना मैला गंदगी जो है कान में और हृदय में, दे गेट वश्ड, सब डिस्ट्रॉयड हो जाता है। पावरफुल हियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड वी शुड रिमाइंड आवरसेल्फ जिस कि सब कुछ हमको भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। अपना हृदय को पवित्र करो कि हमारा जो सेवा है वो सिंसिया होता है। सिंसिया माने हम किसी के लिए दिखाए के लिए नहीं करता, अनप्रिटेंशियस, प्रिटेंड करके नहीं करता, हम एकदम दिल से करता। आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वांट टू डू इट। समटाइम व्हेन वी talk in devotee circles, we say that sometimes devotees get very proud कि हम नहीं रहेगा तो कौन करेगा। Krishna doesn't need anything. All he needs is, Krishna is bhav, is bhava graha, Janardana। वो भाव के लेते हैं। He sees the mood in which we are doing the service। So whenever we do service, we should be very conscious। वो conscious effort करना चाहिए सर्विस में, और conscious effort सब कुछ में करना चाहिए। और सबसे भारी conscious effort है कि हम इस मंथ में डिवोटी अपराध नहीं करें। बिकॉज हम लोग अच्छा चीज़ बोलता है कि आप रीडिंग करेगा, यू गेट सो मच बेनिफिट, आप चैंटिंग करेगा, यू गेट सो मच बेनिफिट। बट अगर कुछ उल्टा चीज़ करेगा, उसका ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होता है। सो इन दिस मंथ वी शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू डू एनी अपराध इन बॉडी, माइंड, वर्ड्स। वी शुड ऑलवेज प्रे टू राधा रानी, राधा रानी, दिस इज योर कार्तिक, दिस इज योर मंथ, सो प्लीज हेल्प अस टू सर्व योर कृष्ण वेरी नाइसली। एंड वी ओनली वांट टू डू सेवा टू प्लीज गुरु और कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए, नथिंग फॉर माई सेल्फ। I am okay. I just want to please. और जैसे मालती माता जी बोले, I will die, but I will not leave my service. So we should also take this व्रत। दिवाली आया है और श्री रामचंद्र ने क्या सिखाया, रघुकुल के रीत क्या है, प्राण जाए पर वचन न जाए। So as devotees we've taken some vows, so we also have to be in that mood, that as long as this gross and this subtle body is with us, we have to utilize it in the service of Krishna, चाहे कुछ भी हो, under any circumstances। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर